lectures. Okay, in previous lecture we have seen the synthesis of a dialkyl acetic acid and synthesis of a succinic acid from malonic ester or diethyl malonate. Now that already we have discussed. This one is the synthesis of a succinic acid that already we have seen in our last lecture. Now we want to see the synthesis of a glutaric acid. So before that you must know the formula for glutaric acid. Glutaric acid, it contains 3 carbon as a CH2 and COH. Now this is the formula for a glutaric acid. Okay, this you can see the last CH2, CH2, CH2. How many times? 3 times, and COOH. Now this is nothing but a glutaric acid. Now we want to see the synthesis of a glutaric acid. Again, step first, it is a common in a glutaric acid. ये जो glutaric acid है, glutaric acid का synthesis जो हमको करना है यहाँ पे, again the step first it is a common. What is that step first? Abstraction of a proton by strong base. ये जो यहाँ पे जो strong base है सोडियम अल्कोक्साइड और सोडियम इथॉक्साइड, ये जो यहाँ पे strong base है, तो बेस क्या करता है यहाँ पे? Now this base abstract this proton and at the same step there is a formation of a carbon as a negative. Now that already it is shown in this step. ये जो है यहाँ का जो प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन यहाँ से निकल जाता है. Now that already we have discussed in a synthesis of a monoalkyl acetic acid, synthesis of a dialkyl acetic acid, and synthesis of a that is a succinic acid. Already we have discussed this point. Now step first is that a formation of a carbanion of a diethyl malonate और malonic ester. ये जो malonic ester है, यहाँ का जो प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन जो है स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो क्या करता है? एक्सट्रैक्ट करता है. ये हमने बहुत सारे रिएक्शंस में हमने ये स्टडी किया. As soon as there is a formation of carbanion of a malonic ester or diethyl malonate, now 2 molecules of these diethyl malonate, that is a carbanion of a diethyl malonate, now that react with the CH2I2. See here, it is a similar to that of the adipic acid. यहाँ पे जो चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज राइट करना हम भूल गए. ओके, so this is a due to technical problems. यहाँ पे you must have a the negative charge. So this negative charge of a one carbanion of a diethyl malonate, now that attack on a CH2. Similarly, second carbanion also attack on a CH2. और यहाँ पे 2 आए हैं, यहाँ पे जो 2 आयोडीन है, वो आयोडीन क्या होता है? यहाँ से लिबरेट होता है. एंड नाउ यू नो वेरी वेल इट इज यहाँ पे जो सोडियम आयन जो रहता है, वो सोडियम आयन जो है यहाँ पे आयोडीन के साथ में रिएक्ट होता है. सो देयर इज अ सिंपल बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन दिस नेगेटिवली चार्ज कार्बन एंड CH2, and this CH2 bond forms with this negatively charged carbanion of a diethyl malonate. So there is a formation of, see here, यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं ज्यादा दिखा है, सिर्फ यहाँ पे क्या होता है? So there is a bond formation is to be takes place in between this CH and CH2 and this CH and CH2. ये जो है यहाँ पे ये CH2 है. बाकी का जो है यहाँ पे ये ईस्टर ग्रुप है, ये भी ईस्टर ग्रुप है, यहाँ पे ये भी ईस्टर ग्रुप है,
ये भी, ये दोनों ईस्टर ग्रुप है। सिमिलरली राइट हैंड साइड में जो है ये 2 ईस्टर। So there is a condensation of these two diethyl malonate with the CH2. Now this is the second step. ये जो है यहाँ पे सेकंड स्टेप है। जैसे ही यहाँ पे ये जो तैयार होता है, now this one is the intermediate और this one is a, it is to be formed। ये जो है यहाँ पे ये जैसे भी तैयार होता है, now that undergo hydrolysis। ये जो है ये हमने यहाँ पे जैसे के वैसे लिखा है। Now that undergo hydrolysis and as you know that, जैसे कि आपको पता ही है, अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये जो सब ईस्टर ग्रुप है, ईस्टर ग्रुप का कन्वर्जन किसमें हो जाता है, यहाँ पे जो भी ईस्टर ग्रुप है, now this ईस्टर ग्रुप it gets converted into carboxylic COOH. Now that already we have discussed in number of reactions. तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे 4 COH ग्रुप है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 2 3 and 4। तो सिंपल ये जो ईस्टर ग्रुप है यहाँ पे 1 2 3 एंड ये 4, यहाँ पे ये जो चारों ईस्टर ग्रुप है, तो ये चारों ईस्टर का कन्वर्जन जो है COOH में हो जाता है। So it gets converted into COOH। रिमेनिंग थिंग्स एज इट इज, CH CH, ये भी CH है, ये भी CH है, और इस दोनों के बीच में क्या है, ये CH2 है। So there is a formation of this type of a compound. Now as already I have told you that when two COH group they are present on the same carbon, मैं ये थोड़ा सा जो है ये अलग कलर से यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक। So this one, so just I can show here। so यहाँ पे ये जो है, मुझे नहीं लगता है येलो कलर आपको दिख जाएगा, लेकिन ये जो CO2 जो है, यहाँ पे मैं एक CO2 जो है येलो कलर से इसको थोड़ा सा ये करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक CO2 जो है ये रिमूव एज CO2 एंड यहाँ का ये जो है 1 CO2 जो है, now that also remove as a CO2। so there is a loss of a twice CO2। यहाँ पे जो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक OH ग्रुप है, तो यहाँ पे ये जो दो COH ग्रुप एक कार्बन पे है, उसमें से एक जो है ये लॉस होता है -CO2। Similar step also happen here. Also there is a loss of a CO2. So there is a loss of a 2 CO2 and it gets converted into glutaric acid. See here, यहाँ पे जो है COH जो है हमने यहाँ पे राइट किया है। So this one is a 1 COOH group. This is a, ये जो है 1 COH ग्रुप है, ये दूसरा COH ग्रुप है। ये मिडल का CH2 जैसे कि वैसा है मिडल का, और ये जो है ये CH, और यहाँ का जो H है यहाँ पे हम राइट करते हैं। सो दिस वन इज CH2, और ये जो CH है और ये जो हाइड्रोजन है, सो दिस इज CH2। सो दिस इज अगेन CH2 एंड दिस वन इज अगेन अनदर CH2। सो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ ग्लूटारिक एसिड। सो हमने यहाँ पे ग्लूटारिक एसिड का जो सिंथेसिस है हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। So this one is nothing but now that is a synthesis of a glutaric। Now we want to see the synthesis of a beta keto acids। Now again, step first, it is to be common। So what is that a step first? What is the step first? Step first is the abstraction of a proton। Okay, now step first is that again it is not given here। Now step first is again abstraction of a proton। यहाँ पे ये जो बेस है, so this base OC2H5 minus, ये जो बेस है, ये बेस क्या करता है, ये जो प्रोटॉन है, now this proton is to be abstracted by means of the base। See here, now arrow also is to be shown here। So there is a loss of a C2H5OH। यहाँ पे जो है C2H5OH जो है यहाँ पे
लॉस होता है। सो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ CH माइनस। तो यहाँ पे ये जो प्रोटॉन है, सो ये जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन रिमूव एज H प्लस एंड दिस सिमिलरली दिस कार्बन, ये जो एरो जो है यहाँ पे भी एरो यहाँ पे हमने दिखाया है। So there is a formation of a CH minus. That is a there is a formation of a carb anion of a malonic ester or diethyl malonate. यहाँ पे ये जो एक्टिव मेथिलीन ग्रुप है, मैंने पहले लेक्चर में बताया, यहाँ पे जो C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड O है, और यहाँ का जो भी ये जो कार्बन है इसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं, और इसके ऊपर जो प्रोटॉन प्रेजेंट है तो हम इसको अल्फा प्रोटॉन कहते हैं। सो दिस वन इज अ एक्टिव मेथिलीन ग्रुप। So this out of that 2 proton, 1 proton is abstracted by means of a strong base, and there is a formation of a carbanion of a malonic ester or diethyl malonate. Now that one we will discuss. As this carbanion of a diethyl malonate is to be formed, now that react with the which compound? देखिए यहाँ पे किसके साथ में रिएक्ट होता होगा? नोवेंजल रिएक्शंस, अगर आपको याद है तो नोवेंजल रिएक्शंस अगर तुम्हाला जर माहिती असेल, इफ यू नो द नोवेंजल रिएक्शंस, then you can tell me. So that react with the aldehyde, that react with the aldehyde or ketone, but here it is to be given as a acetyl chloride. In some cases it is given as a acetyl chloride. In this case it is given as a acetyl chloride. यहाँ पे हम aldehyde भी हम यूज कर सकते हैं, यहाँ पे जो है हम aldehyde भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। So there is a formation of what we can say, now that is nothing but there is a ये जो यहाँ पे जो भी negative charge है, so this negative charge now that react with this one, and now that there is a loss of a chlorine as a Cl minus। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्लोरीन माइनस जो है यहाँ पे रिमूव हो जाता है। सो just wait, so there is a loss of a what we can say, now that is nothing but a chlorine। यहाँ पे हम हाइड्रोजन भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, बट वी वांट टू सिंथेसाइज बीटा कीटो एसिड्स। हमको यहाँ पे बीटा कीटो एसिड, हमको कीटोन ग्रुप यहाँ पे प्रिपेयर करने का है। थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया था, एसिड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड और बीटा कीटो एसिड में, तो हम यहाँ पे जो है कीटोन ग्रुप जो है हमको यहाँ पे प्रिपेयर करना है, तो हम ऑब्वियसली डेफिनेटली वी कैन यूज एज एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड और व्हाट वी कैन से असाइल क्लोराइड, यहाँ पे हम आरबी ले सकते हैं। सो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ, सो सिंपल व्हाट हैपन यार, यहाँ पे जो है, यहाँ पे नया बॉन्ड जो है यहाँ पे तैयार हो जाता है और क्लोरीन जो है यहाँ पे रिमूव हो जाता है। सो देयर इज अ लॉस ऑफ अ क्लोरीन, so there is a loss of a chlorine। see here, ये जो ब्लू कलर में जो है यहाँ पे आपको दिखता होगा, यहाँ पे जो भी यहाँ पे जो ब्लू कलर है, यहाँ पे जो भी ब्लू कलर है, तो ब्लू कलर में ये सब पुराना जो है, यानी कि मैलानिक एस्टर का जो स्ट्रक्चर जो है वो हमने यहाँ पे रिटर्न किया है, दैट इज द कार्बन ऑफ अ मैलानिक एस्टर। So this one is a one ester group, this is second ester group, and this one is a CH। So one ester group, this one is a second ester group, and this one is a CH group, and this CH form a bond with this one is a carbonyl group। यहाँ पे जो कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप के साथ में इसने क्या किया है, बॉन्ड फॉर्म जो है यहाँ पे किया है। खाली हमने इसका ये जो CH3 जो है, इस CH3 को हमने Cl की जगह पे लिखा है, जैसे कि हम हमारे लिए इजी हो जाए, और Cl जो है यहाँ से निकल जाता है। So there is a loss of a Cl as a Cl minus, यहाँ पे जो Cl है, Cl remove as a Cl minus, तो ये भी हमने यहाँ पे स्टडी किया है। Now which all hydrolysis, आपको पता ही होगा, अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, ये जो है COET ग्रुप जो है, दैट इज एस्टर ग्रुप जो है, एस्टर ग्रुप का कन्वर्जन जो है किसमें हो जाता है, एनीवन, एस्टर का कन्वर्जन किसमें होता है,
एसिड So it gets converted into carboxylic acid, that is a COOH. ये जो है किसमें कन्वर्ट हो जाता है, COOH ग्रुप में। तो यहाँ पे देखो हमने जो आगे जो प्रोडक्ट लिखा है, तो आगे का जो प्रोडक्ट है यहाँ पे खाली ईस्टर जो ग्रुप है, सिंपल ये जो ईस्टर ग्रुप है, तो ईस्टर ग्रुप का कन्वर्जन हमने किसमें किया है, COH में। एक ईस्टर है, ये दूसरा ईस्टर है, तो दोनों ईस्टर का कन्वर्जन हमने COOH में हमने किया है। और जैसे कि मैंने बताया आपको, दो अगर कार्बोक्सिलिक OH ग्रुप एक कार्बन पे अगर रहते हैं, when they are present on the same carbon, if you heat it slightly, तो अगर हमने हीट किया थोड़ा सा, अगर हम इसको हीट करते हैं, so it gets converted. So what happen here, तो यहाँ पे जो है ये दो COH ग्रुप है, ये जो दो COH ग्रुप है, तो उस दोनों में से एक जो है वन रिमूव एज अ CO2, तो वन जो है यहाँ पे CO2 जो है ये जो है यहाँ पे मैं एक लाइन मारता हूँ, सो दैट इज आई कैन कट इट, सो देयर इज अ लॉस ऑफ अ CO2, तो यहाँ पे जो है CO2 जो है लॉस हो जाता है। बाकी क्या बचा है आपको पता ही होगा, ये है CH3, later on CO2, this one is a CH2 and COOH। तो ये जो प्रोडक्ट है हमने यहाँ पे लिखा है CH3, देखो this one is a CH3, C डबल बॉन्ड O, आफ्टर दैट CH2, ये जो CH2 है और ये है COOH। So there is a formation of a beta keto acid. See this one is a COH group, COOH group, उसके बाद में का जो भी कार्बन है उसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं, नेक्स्ट कार्बन जो है उसको हम बीटा कार्बन बोलते हैं, और देयर इज अ सो कीटो ग्रुप नाउ दैट इज प्रेजेंट ऑन अ बीटा कार्बन, सो हम इसको क्या बोलते हैं, बीटा कीटो एसिड्स। सो देयर इज अ सिंथेसिस ऑफ अ बीटा कीटो एसिड्स। फिर जस्ट आई कैन रिपीट इन विद इन 1 मिनट। ये जो पहली स्टेप है, यहाँ पे जो भी पहली स्टेप है, पहले स्टेप में क्या हो जाता है, ये जो प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन इज abstracted by means of a this is a strong base, now that already we have discussed, और यहाँ पे जो है CH माइनस जो है तैयार हो जाता है, so there is a formation of a CH माइनस। आज this CH माइनस is to be formed, ये जो है ये हमने यहाँ पे फिर से रिपीट लिखा है ब्लू कलर में जो है, so this one is a this ester group, this ester group and this one is a CH माइनस। ये जो ester ग्रुप है, ये दो ester ग्रुप और यहाँ पे CH माइनस। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाता है, नाउ दैट वी हैव टेकन असाइल क्लोराइड, और यू कैन यूज और हम यहाँ पे आप जो है यहाँ पे एसिटिल क्लोराइड भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, एसिटिल क्लोराइड और असाइल क्लोराइड। असाइल का मतलब यू कैन टेक एज आर एनी अल्किल ग्रुप, यहाँ पे हम जो है यहाँ पे हम कौन सा भी अल्किल ग्रुप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो सिंपल यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो है ये बॉन्ड फॉर्म होता है और Cl जो है Cl रिमूव एज Cl माइनस, तो यहाँ पे Cl जो है यहाँ पे ये जो है निकल जाता है। ओके, सो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ दिस वन इज अ C डबल बॉन्ड O, ये जो है यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो जाता है C डबल बॉन्ड O एंड ये जो है CH3। बाकी की जो चीजें हैं जैसे कि वैसे हमने रखे। अगर हम इसको हाइड्रोलिसिस करते हैं, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर हम इसको हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये जो COOH ग्रुप है, ईस्टर ग्रुप है, ईस्टर ग्रुप का कन्वर्जन COH में हो जाता है, ये दूसरा ईस्टर ग्रुप है, इसका कन्वर्जन फिर COH में हो जाता है। आज मैंने जैसे कि पहले ही बताया है, यहाँ पे अगर दो COH ग्रुप अगर सेम कार्बन पे प्रेजेंट है, तो हमने अगर इसको स्लाइड हीटिंग दे दी, तो यहाँ पे वन जो है वन कार्बन रिमूव एज अ CO2, तो यहाँ पे वन कार्बन जो है वन कार्बन निकल जाता है इन द फॉर्म CO2 एंड व्हाट इज टू बी रिमेन, सो दिस इज अ CH3, ये है C डबल बॉन्ड O, ये है C डबल बॉन्ड O, उसके बाद में ये है कार्बन, ये है एक हाइड्रोजन, ये है दूसरा हाइड्रोजन, दैट इज ये है तुम्हारा CH2 और ये है तुम्हारा COOH, सो दिस वन इज अ COOH। उसके बाद में का जो कार्बन है उसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं, और उसके बाद में का जो नेक्स्ट कार्बन है उसको हम बीटा कार्बन बोलते हैं। So at beta carbon there is a presence of a C double bond O. So this is nothing but a
बीटा कीटो एसिड। सो हम यहाँ पे जो बीटा कीटो एसिड्स है, सो हम इसको बीटा कीटो एसिड का सिंथेसिस जो है हमने यहाँ पे देख लिया। सो देयर इज अ formation of a what we can say now that is nothing but a beta keto acids. Now that already beta